हेलो बच्चों, in this lecture we are going to discuss about the Newton's second law of motion. But before going to start this law, we have to discuss one very important term, which is momentum, and it is also introduced by Newton. So first we have to learn about the momentum, and then on the basis of this term we can define the second law of motion. To see what is the momentum, everybody has the mass, na? If any object have all object have the mass, तो अगर किसी बॉडी का मास हम लोग m सपोज कर लें, if any body has the mass m and it is moving with a velocity v, then the product of mass and velocity is known as the momentum of that body. Okay, see, if any body has mass m and it moving with velocity v, then the momentum of body p is equal to p is denoted for the momentum. This is small p and it is used as the notation of the momentum. P is equal to m into v. This term is known as the momentum. What is the unit of this term? Momentum. तो मोमेंटम का देखो जो यूनिट होगा, देखो मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट होता है kg, तो ये kg हो गया, और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड. तो we can write the unit of momentum is kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो देखो मोमेंटम जब आपने समझ लिया तो हम लोग को अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करनी होगी कि व्हाट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो व्हाट statement has given by the Newton to define the second law of motion, that is the rate of change of momentum. The rate of change of momentum, that means momentum में with the respect of the time क्या हो रहा होगा? Change हो रहा होगा. तो the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied unbalanced force. किसी बॉडी में अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो इट विल चेंज द मोमेंटम, है ना? उस बॉडी के मोमेंटम को क्या कर देगा? चेंज कर देगा. एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट मींस अनबैलेंस्ड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ओके, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो व्हाट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटेड दैट कि the rate of change of momentum, the rate of change of momentum is proportional to the applied unbalanced force. ओके, दैट मीन्स कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने से जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ओके, नाउ वी हैव वन मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर दिस लॉ एंड वी कैन डिराइव इट इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. Now, mathematical formula for the second law of motion, we are going to derive it. Mathematical formula for second law of motion. So, consider a body. See, if a body which has the mass m is moving on a straight line path, and after time t second, the position of this body is at b. That this time take the position of the body at a, and after time t the position of body is at b.
and one force is applied, one unbalanced force is applied to move this body which has the mass m kg, है ना, और वो फोर्स जो अनबैलेंस फोर्स है इस बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करा देता है इन द टाइम इंटरवल ऑफ टी। सपोज करो इसका यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, इसकी वेलोसिटी u थी, और यहाँ पे जो मास m kg का है ऑब्जेक्ट है, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो एट पॉइंट ए व्हाट इज द मोमेंटम, मोमेंटम वी कैन राइट लाइक दिस p a, p a दैट मींस मोमेंटम एट पॉइंट ए। तो मोमेंटम एट पॉइंट ए, तो अगर बॉडी u वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो उसका जो मोमेंटम होगा, मास m है, u वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो दैट मींस द मोमेंटम ऑफ बॉडी एट पॉइंट ए इज mu, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट बी पे। आफ्टर टाइम t जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट बी पे पहुंच गया, एंड दिस टाइम द मोमेंटम ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी इज मास इनटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम ना। तो जो बॉडी जो है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका मास 1 kg है, मास तो चेंज होगा नहीं, वेलोसिटी चेंज होगी, कितनी हो गई, v हो गई, तो यहां हो जाएगा mv। क्लियर। एट पॉइंट ए the momentum of the body is mu, and at the point b the momentum of the body is mv. Now what is the change in the momentum? Momentum में क्या change हुआ? तो change in momentum p is equal to delta p is equal to pb minus pa। ये होगा ना, देखो पहले at point a मोमेंटम mu था, एट पॉइंट बी mv हो गया, तो जो चेंज हुआ इसके डिफरेंस से मालूम चलेगा, तो pb minus pa which will equal to mv minus mu। क्लियर। अभी देखो क्या होने वाला है, डेल्टा p दैट इज चेंज ऑफ द मोमेंटम। अभी देखो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t, बिकॉज a से b तक जो मोमेंटम चेंज हुआ उसमें टाइम कितना लगा, t सेकेंड का लगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा जो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, जितना टाइम लगा इस मोमेंटम को चेंज होने में। So this is the rate of change of momentum, and second law of motion is stated that the applied unbalanced force, देखो यहाँ पे फोर्स क्या लगाया है, F, तो जो applied F जो unbalanced force है it is proportional to the change in the momentum ना। तो according to by second law of motion, ठीक है, अगर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करते हो यहाँ पे, तो जो फोर्स F होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t। क्लियर। तो यहां से आपने ये बता दिया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को, ठीक है। तो ये क्लियर है, इसको रफ कर दिया है, इतना आप समझ चुके हो। हम लोग ये पोर्शन इतना रफ कर दें, ये डायग्राम आप बना सकते हो कॉपी में टू एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी क्लियरली, ठीक है। डन, ओके। तो अभी देखो क्या करने जा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी की साइन आई है, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है, तो वी कैन राइट F इज इक्वल टू k, और इसमें से देखो m कॉमन हो जाएगा, तो m v minus u upon t, okay, and in next step we can write F is equal to k, और देखो ये जो टर्म है पूरा, ये पूरा टर्म किसको डिफाइन कर रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, v minus u by t is the acceleration of the body, तो ये हो जाएगा k is equal to F is equal to k m into a, where a is equal to v minus u by t, okay। So this is the formula, but व्हाट अबाउट फॉर दिस कांस्टेंट के, तो इसकी जो वैल्यू है हम लोग 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। कैसे 1 हो जाएगा, इफ F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, m इज इक्वल टू 1 kg,
एंड a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो देखो मास 1 हो गया, एक्सेलरेशन 1 हो गया, फोर्स 1 हो गया, तो देन k इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो वी हैव टू कंसीडर k इज इक्वल टू 1, तो दिस फॉर्मूला विल बी F इज इक्वल टू m into a। See, this is the formula for the second law of motion and it is very important and we have to solve some questions based on this formula also। देखो फोर्स क्या हो गया is equal to mass into acceleration, तो according to the second law of motion जो applied unbalanced force होगा this will be equal to the mass of the object and the product of the acceleration, तो mass into acceleration is equal to applied unbalanced force। ठीक है, अब देखो यहां से इसको पहले कंप्लीट कर लो, नोट करना है, वीडियो को पॉज करके सारी चीजें आप नोट कर लो, दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के रिलेशन से डिफाइन करके दिखाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी आप इस रिलेशन से डिफाइन कर सकते हो, तो डन। ओके, तो देखिए यहां पर अभी आपने एक रिलेशन लिखा है F इज इक्वल टू मास, ठीक है, ये प्रूव हो चुका है, ये हम लोग फर्स्ट लॉ को विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला डिफाइन करने जा रहे हैं। तो यहां से है m और ये हो जाएगा, अभी आपने ये लिखा था ना, यहाँ पे यहां से ले लेते हैं, तो F इज इक्वल टू m v माइनस u बाई t फॉर k इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी देखो a की वैल्यू पुट कर दिया, अब इसको थोड़ा अरेंज कर लो, F इज इक्वल F इंटू t इज इक्वल टू mv माइनस mu। क्लियर? इफ F इज इक्वल टू 0, F इज इक्वल टू 0 मींस क्या हुआ, बहुत अच्छे समझिएगा, मतलब यहां पर जो अनबैलेंस फोर्स है वो क्या हो गया, 0 हो गया। इफ अनबैलेंस फोर्स इज 0 क्या होगा, देखो अब आपको मिलेगा फर्स्ट केस में, यहां से देखिए, यहां से अगर F की वैल्यू 0 हो गई तो आप फाइनली क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू U। ठीक, तो अब ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, देखो F इक्वल टू 0, दैट मींस नो एक्सटर्नल फोर्स। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, दैट टाइम जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वही उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, दैट मींस बॉडी विल मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड। वो क्या करेगा, एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता ही रहेगा, जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी वही उसकी फाइनल वेलोसिटी भी मिल रही है ना। तो इफ वी हैव टू, इफ किसी बॉडी पे अगर मान लो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, तो उस केस में जो बॉडी है अगर मोशन में है तो वो मोशन ही करती रहेगी। दिस स्टेटमेंट इज एक्सप्लेनिंग दिस थिंग ना। अब और एक केस ले लेते हैं कि अगर सपोज कर लो u क्या है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, अगर u 0 हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है और u 0 मतलब एट रेस्ट, तो अगर u 0 हुआ तो उस टाइम v भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, u 0 तो v 0, मतलब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए और ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, u 0 है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा, मतलब v भी आपको फाइनल वेलोसिटी भी क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो with the help of this formula for the second law of motion we have explained also the first law of motion। okay, तो revise all these things very carefully, बहुत important topic आपने पढ़ा है आज, इसको अच्छे से रिवाइज करिए। in next class we will continue with the third law of motion given by the Newton। okay, thank you।